अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सवेरा खान और मेरे साथ मौजूद हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते तो चलते हैं वीडियो की तरफ, करेंगे बहुत सारी बातें। सो लेट्स गो। तो वीडियो का टाइटल है इंडिया फर्स्ट ग्लास ब्रिज ओवर सी इनोग्रेटेड इन तमिलनाडु, की फीचर्स एंड कोस्ट वॉच। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेट्स प्ले। क्या बात है यार, ये दोनों को ये 10 मीटर, हाँ अच्छा काफी टाइम से इसकी लैंड कमेंट आ रहे थे। अच्छा, ग्लास ब्रिज कनेक्शन टू आइकॉनिक लैंडमार्क। A groundbreaking marvel has taken shape at नीचे India's सब southernmost नीचे पानी भी दी। Tamil Nadu तो- Chief Minister N.K. Stalin has inaugurated India's first ever glass bridge connecting two First iconic glass landmarks, ब्रिज the Vivekananda Rock Memorial and the Put towering 133 133-foot Thiruvalluvar statue. Spanning an impressive 77 meters in length and 10 meters in width, this architectural wonder is similar to the ones built across different countries. The हुआ transparent glass provides visitors with yeah, breathtaking बिल्कुल views of ऐसा the ही है। Arabian Sea below, Arabian offering a look आ thrilling रहा है, sensation वाकई। of walking on water. The bridge was inaugurated to mark the silver jubilee of the Thiruvalluvar statue's unveiling, an event led by the late Chief Minister 27. M. Karunanidhi 27. 25 years ago. Designed like a bowstring arc, the bridge Mod- reflects modern engineering tailored to endure the coastal elements while offering visitors Look. uninterrupted view of the ocean below. The 37 crore rupees project 37 spearheaded by Tamil crore. Nadu government offers more than just connectivity. It replaces the reliance on ferries, allowing visitors scenic and accessible route between the two monuments. The new pathway not only cuts down travel time but also elevates the journey into an unforgettable experience. वेरी Located about 500 meters off the coast, Vivekananda Rock Memorial was built in honor of Swami Vivekanand, who is believed to Acha. have meditated there. The memorial features two prominent structures, the Vivekananda Mandapam Mandap. and the Sripada Mandapam. Adjacent to the Vivekananda Yeah. Rock Oh, Memorial yeah. stands the majestic 133 feet tall statue of the Tamil poet Saint Thiruvalluvar. The 30, pedestal of the 30. statue Yeah, stands sure. 38 feet tall, with the statue sure. itself rising Oh, an yeah. additional 95 feet. However, the bridge has also sparked a political debate. Opposition leader Edapadi K. Paniliswamy claimed the project was initiated during his tenure Option. as Chief Minister. Will you be visiting the glass bridge anytime soon? Okay. Mention in the comments below. For more news and updates, Like keep watching Live Mint. ओके। कमाल, आइकॉनिक ब्रिज। आइकॉनिक। ये मतलब मुझे जो मालूम था ग्लास ब्रिज, ये सिर्फ दुबई का मालूम था। अच्छा इसके अलावा बहुत है। लेकिन मुझे नहीं मालूम था सिर्फ दुबई का, मतलब दुबई में जो बुर्ज खलीफा उस साइड पे जो है ग्लास ब्रिज, बस उसी का आइडिया था। इसके अलावा इंडिया का भी ये फर्स्ट ब्रिज है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा, दो आइकॉनिक जगहों को जोड़ रहा है और मेरे ख्याल में टेम्पल। इसका एक बेनिफिट तो बहुत हो गया होगा बिल्कुल ऐसा ही है। और एक बेनिफिट, एक नेगेटिव पॉइंट ये होगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इलाके के जो कश्ती वाले होंगे, नहीं मतलब देखो, एक कश्ती वालों का तो काम है ना, क्योंकि देखो एक इस साइड पे है और एक इस साइड पे है, आसपास पानी है, तो सुन। दोनों कश्ती वाले यहाँ तक तो ला रहे हैं, लेकिन उन दोनों को कनेक्ट करने के लिए जो इधर से उधर जाता होगा बंदा, इधर से उधर, तो कश्ती वालों को थोड़ा सा काम रोजगार कम हो गया। लेकिन इसके बाद कई रोजगार और बढ़ते हैं और चीज़ें और डेवलपमेंट होती है। अब जब ये ब्रिज हो गया है तो 100% मिसाल के तौर पर कश्ती ये नहीं था तो कश्ती वालों का रोजगार था, अब कश्ती वाले अंदर तक तो ला रहे हैं, एक से दूसरे से कनेक्ट वो खुद हो गए, ठीक है, ब्रिज के ज़रिए से। तो अब ये ब्रिज नहीं था तो शायद एक महीने में 5,000 लोग आते थे, अब इस ब्रिज को देखने के लिए भी और इस एक्सपीरियंस को लेने के लिए भी शायद 20,000 लोग, ऐसा ही है, बिल्कुल तो फिर उनका काम बढ़ गया ना। ऐसा ही। तो कोई भी चीज़ यानी कि एक नेगेटिव पॉइंट होता है तो उसके कई प्लस पॉइंट भी होते हैं। दुनिया में यही हो रहा है कि अगर कोई बिजनेस बढ़ता है, कोई ख़त्म हो रहा होता है, अब जैसे IT है तो IT या AI है तो बहुत सी चीज़ों को खा गई है, बहुत सी चीज़ें कम हो रही है, तो कई चीज़ें बढ़ रही हैं और कई आप उससे कंटेंट बना सकते हो, बहुत सी चीज़ें बढ़ रही हैं। खैर मतलब अपने आप में बड़ा आइकॉन, और आइकॉन जगहों को ही, आइकॉन चीज़ों को ही आपस में मिला दिया, यानी कि अपने आप में ब्रिज आइकॉन। और एक चीज़ है, साउथ इंडिया और तमिल और साउथ इंडिया जो है ये अपने आप में बहुत मिस्ट्री है, बहुत अपने आप में आइकॉनिक है। अब देखे ना, हमने ये कभी देखा ही नहीं इसके बारे में, यानी कि इस ब्रिज की ये 8 दिन पहले ही वीडियो आई है, मुझे रेकमेंड कभी इसके बारे में कोई ब्लॉग नहीं देखा, यहाँ पर किसी ने कोई रिकमेंड नहीं किया, तो ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह लग रही है। ऐसा ही। समंदर के बीच में दो पहाड़ हैं,
उसी के ऊपर 2 टेम्पल हैं, 2 मूर्तियां हैं, एक बहुत बड़ी मूर्ति है, एक और दूसरा टेम्पल है। तो मतलब ये अपने आप में क्या है, ब्रिज तो अपनी जगह एक टेक्निकल चीज़ हो गई। ऐसा ही। और रात में तो उसका व्यू और भी क्या लगता है, ये सारी चीज़ें। अब मुझे उनको देखने का या उनके बारे में जानने का, कितने साल पुरानी बात है, कितना मतलब है कि उसकी हिस्ट्री है, वो जानने का एक तजस्सुस हो गया कि यार ये जगह क्या है, कौन सी जगह है। लेकिन इंडिया जो है हर किसी के लिए, आवाम के लिए, हर राज्य, हर मतलब है कि जो प्रोविंस है वो अपने नागरिकों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें पैदा करता है। यानी कि कनेक्टिविटी, इन दोनों को कनेक्ट कर लिया, शहरों को कनेक्ट कर लिया। आने वाले वक्त में हो सकता है कि यहाँ से वहाँ तक, अगर मुझे नहीं पता कितना सफ़र होगा, हो सकता है यहीं से भी कोई ब्रिज बना लिया जाए, मे बी पॉसिबल। लेकिन वो उस चीज़ को देखते हुए बनाया जाता है, बहुत बड़ा ब्रिज, कि लोगों का आना कितना है, लोगों को ज़रूरत कितनी है। लेकिन अब जब ये सहूलतें हो जाएंगी तो जाहिर सी बात है लोग आएंगे। अब कुछ होते हैं जिनको बोट में बैठने से डर लगता है, जैसे कि मैं नहीं बैठ जाता, बहुत डर लगता है, बचपन से नहीं बैठी। मतलब फिर लोग इससे डर नहीं लगता, उसको कहते हैं पानी से डर लगता। पानी से, मतलब पानी, हाँ पानी से डर लगता है। पानी से डर लगता तो जाहिर सी होते पानी से डर लगता है तो बोट में इंसान बैठ नहीं सकता। तो मतलब ऐसे लोग होते हैं जिनको पानी से डर ऐसा लगता है बोट डूब जाएगी, डूब नहीं जाएगी, वैसी बस एक खौफ सा आता है। एक बार बोट सुराख हो जाएगा तो पानी आ जाएगा तो एक दिल में ख्याल आता है, खौफ ये इसी को तो कहते हैं। बस किसी को ऊंचाई से खौफ होता है, किसी को लिफ्ट से खौफ होता है, बंद जगहों पे किसी को डर लग रहा होता है कि ऐसा लग रहा है मेरा दम घुट जाएगा। हर किसी का अपना ये फोबिया कहते हैं। आई नो हम फोबिया कहते हैं, लेकिन आपको पानी का नहीं वैसे तो सी साइड में बहुत पसंद है, लेकिन बस ये वाला मसला है। उसके अलावा तो मैं फिर सब पानी का तो मसला नहीं है। पानी में सॉरी नहाने में भी लगता है, नहाने में नहीं, नहाने में तो मैं 1 घंटा लगा दूं, पानी ऐसे फेंकती रहो। लेकिन क्या लेकिन क्या मैं कुछ कहना चाह रही थी, भूल गई। बहरहाल बहुत ही मतलब है कि यूँ समझ लो कि यहाँ के लोगों के लिए सहूलतें हो गई, यहाँ के लोगों के लिए बहुत ही एक आइकॉनिक चीज़ हो गई। और ये चीज़ें, ये इमेज, ये पिक्चर, ये तस्वीरें दुनिया में फैलती हैं तो इंडिया की एक खूबसूरत इमेज जाती होगी। इंडिया, दुनिया को जो लगता है कि यार पता नहीं कौन सा इंडिया का इंडिया वो इंडिया नहीं रहा। अब ये चीज़ें जो है ना इंडिया को एक, अब जैसे गिलास ब्रिज है, अब तय बनेंगे, आने वाले वक्त में आएगा, इसका ट्रेंड चल पड़ेगा। एक राज्य में बना तो दूसरा कहेगा मैं क्यों पीछे रहेगा। देखिए एक होता है किसी को नीचा दिखाना, वो स्टेट सही काम नहीं कर रहा, वो स्टेट सही काम नहीं कर रहा, अरे अल्लाह के बंदे वो नहीं कर रहा, तुम बेहतर करके उसको नीचा दिखाओ। ज़बानी किसी को नीचा ना दिखाओ, ऐसा है, अपना काम इतना बेहतर करो, अपने आप को इतना ऊंचा। ये लोग आपकी कॉपी करें, लगता है कि यार वो तो इतनी तरक्की कर गया, वो राज्य इतनी तरक्की कर गया, वहाँ का जीडीपी इतना बढ़ गया, वहाँ लोग खुश हैं अपनी सरकार से, तो हम उससे बेहतर करें। तो ये आपस में एक कंपटीशन होना चाहिए, ना कि एक दूसरे को गिराना चाहिए, बल्कि एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहिए। ये कंपटीशन जिंदगी में होना चाहिए, अपनी पर्सनल लाइफ में भी और किसी भी फील्ड में ये कंपटीशन होना चाहिए। लेकिन मैं ये बोल रही थी कि इंडिया का नाम सुन के ना हमें ये लगता था कि यार इंडिया है ना तो पता नहीं क्या होगा, गाँव ऐसा गाँव टाइप का, जैसे पाकिस्तान में गाँव इस तरह का होगा। लेकिन जब से ये न्यूज़ के थ्रू मालूम चला है, वीडियोस के थ्रू मालूम चला है, तो मालूम चला कि इंडिया तो इंडिया है ना, इंडिया तो वाकई मार्च तक पहुंच गया है। लोगों की जो सोच है, जिसने सोशल मीडिया पे है, तो उन्हें पता चल गया कि यार इंडिया अब क्या है। बिल्कुल जो पुराना वाला इंडिया था वो नहीं रहा। बिल्कुल। दोबारा किसी और भी सलाह से मुलाकात होती है, जब तक के लिए ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।